یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو اسلام. آواز بہت کم ہے. سب کو اسلام. کتنے لوگ آج صبح خوش ہیں؟ Praise the Lord. ہم خوش ہیں because we are in the house of the Lord. کیونکہ ہم خداوند کے گھر میں ہیں. Hallelujah. اور جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر آزادی ہے. اور جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو جو ہے جکڑے آزاد ہوتے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں. Hallelujah. Praise the Lord. جلدی سے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے. آج بھی میری کوشش ہے کہ ہم وقت پر ہی عبادت کو ختم کریں گے. Hallelujah. Praise the Lord. تو آئیے کلام میں سے آج جو ٹاپک خدا نے کل رات جب میں دعا کر رہی تھی, میں نے خدا سے پوچھا, خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ آج تیرے لوگوں کے ساتھ کلام کیا جائے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے A New Mindset. اردو میں ایک نئی ذہنیت یا ایک نئی سوچ. آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم مرکز کی انجیل اس کا 2 باب 22ویں آیت, یہاں پر لکھا ہے, اور نئی میں کو پرانی مشقوں میں کوئی نہیں بھرتا, نہیں تو مشقیں میں سے پھٹ جائیں گی اور میں اور مشقیں دونوں برباد ہو جائیں گی, بلکہ نئی میں کو نئی مشقوں میں بھرتے ہیں. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزوں, بہت ہی آسان ہے. ہم زندگی کے اندر بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں, بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جہاں پر ہم سٹک ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تیرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, ساری عمر میرا بلڈ پریشر ہائی رہنا ہے. کوئی اور ایسی رپورٹ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے. We get stuck with the report of doctor. ہم اس ڈاکٹر کی رپورٹ کے ساتھ اپنی ذہن کو ملا لیتے ہیں, اپنی سوچ کو ملا لیتے ہیں. ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہنتے میں بیماری چی رہنا ہے, یا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, ہم گھبرانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید اب تو میں اس مشکل سے نکل ہی نہیں سکتا, اور ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ ہماری سوچ, ہمارا مائنڈ سیٹ, ہماری ذہنیت جو ہے وہ اسی بات کے ساتھ چپک جاتی ہے اور ہم خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں, خدا کے کلام کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. اکثر اوقات ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں, ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے ہم کہتے ہیں نہیں شاید میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا, یہ تو پورا ہی نہیں ہوگا, اسی کتوں ہے کام کرنا. آج میرے عزیزو, جن لوگوں کی ایسی سوچ ہے جو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں you need to change your mindset. آپ کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اگر آپ یسوع کے ماننے والے ہیں, تو پھر کلام فرماتا ہے, میں نہیں کہہ رہی, خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ اس کی اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں. اکثر اوقات میرے عزیزو, ایسی نشے کی لعنت یا کوئی اور بری عادت آپ کو لگ جاتی ہے, آپ سمجھتے ہیں میں اس ایڈکشن سے, اب میں اس لت سے, اس عادت سے نہیں نکل سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, what holding us back many times, it's our own thinking. اکثر اوقات بہت سے کاموں کو کرنے کے لیے جو چیز ہمیں روکتی ہے نا, وہ ہماری اپنی سوچ ہے. کیونکہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں, اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہیں. لیکن جتنے مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو, یسوع نے کہا کہ کیا کلام کی جو ورس ابھی ہم نے مرکز 2 باب کی 22ویں آیت میں پڑھی, لکھا ہے You can't put new wines into old wine can. نئی میں کو پرانی میں کی مشکوں میں نہیں
डाला जा सकता, भरा जा सकता। क्यों मेरे अजीजों? उस वक्त की जो मशकें थी वो लेदर की बनी होती थी। और क्या है कि लेदर के बने होने की वजह से जैसे जैसे वो मशकें पुरानी हो जाती, वो कैन्स, वो बोतलें जो समय को अपने अंदर लिए हुई थी, वो चमड़ा जो है वो सख्त हो जाता। और जैसे ही उन मशकों को नई मैं में डाला जाता वो फट जाती वहां पर ही। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर किसी मैं की बात नहीं कर रही, और यीशु मसीह भी वहां पर मिसाल दे रहे थे, और आज मैं भी आपको मिसाल दे रही हूँ। और इसका मतलब क्या है? यू कांट हैव अ न्यू लाइफ विद ओल्ड थिंकिंग। ये हवाला, ये तमसील जो आज के आपके लिए कही गई, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि नई जिंदगी मिल जाए। यीशु को दिल दे दे। कलाम में लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। जैसे ही आप यीशु को कबूल करते हैं आपको नई जिंदगी मिल जाती है। फिर आप अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे जाते हैं। और अगर आपको नई जिंदगी मिली है तो फिर सोच भी नहीं होनी चाहिए। आज I want to declare it in the name of Jesus. यीशु के नाम से इस बात का ऐलान करती हूँ कि अगर आपको नई जिंदगी मिली है तो आज receive your new mindset in the mighty name of Jesus. Hallelujah. और वो न्यू माइंडसेट, नई सोच, वो किंगडम सोच बन जाएगी, वो बादशाहत की सोच आपको मिलेगी। फिर आप किसी इधर उधर देखकर किसी को अपने से छोटा नहीं समझेंगे, बल्कि हर किसी को अपने से बेहतर समझेंगे। एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप महदूद हैं, आप एक हद पर पहुंच गए हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते, और मेरे अजीजों अगर आप सोच रहे हैं आपकी मुश्किल बहुत बड़ी है, हुनते मसला हल ही नहीं होना, अक्सर औकात आप मसीह के बेटे और बेटियां तो होते हैं, ईमानदार तो होते हैं, लेकिन मनफी बातों से भरे होते हैं, आपका माइंडसेट नेगेटिव होता है, हमेशा मनफी बात ही करते हैं, उठते हैं आपके मुंह से हाय निकलती है, बजाए के आप कहें यीशु तेरा शुक्र, नया दिन तूने मेरी जिंदगी में बख्शा। आप उठते हैं, आप कहते हैं हाय मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, बजाए के कलाम में लिखा है रास्तबाज ईमान ही से जीता रहे। बजाए कि आप पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव सोच को रखते हुए कहें नहीं ये बीमारी मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, वो मुझे कैंसर से शिफा देगा, वो मुझे टीबी से शिफा देगा, वो मेरे गुर्दों को नया कर देगा। वो चाहता है कि अगर आपने उसको कबूल किया है, आप नया इंसान बने हैं, आपने मसीह में नया बर्थ लिया है, तो आपकी सोचें भी नहीं होनी चाहिए। हम बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, कोर्स गाते हैं, और उसमें कहते हैं सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। क्या वाकई हमारी सोच उसकी मानद है, या हम सिर्फ गाते हैं और थोड़ी देर के बाद उसे भूल जाते हैं? मेरे अजीजों, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कहते हैं फलां शख्स जानता हूं मैं इसको, ये तो बुरे काम करता है, फलां शख्स मैं इसको भी जानता हूं। मेरे अजीजों, जिनके बारे में आप ऐसी राय रख रहे हैं, आपका काम नहीं है। एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूं। एक खुदा की खादमा थी, वो नॉर्वे से बिलोंग करती, और किसी ऐसे मुल्क में गई जहां पर खुदा का काम कर रही थी। वो कहने लगी कि जब मैं सुबह रोड पर निकली तो क्या हुआ, मेरा किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, और खुद ब खुद ही मैं भूल गई, मैं उस शख्स को कोसने लगी,
اور میری کمر پر چوٹ لگ گئی. جب بھی مجھے درد ہوتی میں اس شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی اور کہتی او فلاں شخص فلاں وقت اس کی گاڑی مجھے لگی تھی نہ لگی ہوتی. میں اس کو قرض کرنا شروع ہو گئی, اس کو بد دعا دینے لگی اور کہنے لگی. ایسے میری زندگی کے اندر منفی مائنڈ سیٹ, میرا ذہن ایسا بن گیا. ایک رات میں دعا کر کے سوئی. جب میں دعا کر کے سوئی تو رات کے درمیان خدا کے پاک روح نے مجھ سے کلام کیا اور خدا نے مجھے کہا جس شخص کو تو نے قرض کیا ہے تو اسے اپنی سوچ سے دیکھ رہی ہے. آج کل ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں ایتے نشئی ہے, ایتے کسی کام کا نہیں ہے. میرے عزیزو, آپ کا کام نہیں ہے کسی کے گناہوں کو یا کسی کی بھی کوئی بات کو دیکھ کر اس کے بارے میں منفی باتیں بولنا. وہ کہنے لگی خدا کے پاک روح نے مجھے کہا جیسے تو میری بیٹی ہے ویسے وہ شخص بھی میرا بیٹا ہے. تیرا کام نہیں ہے کہ تو اس کے لیے بڑبڑانا شروع کر دے. تیرا کام نہیں ہے کہ تو اس کو قرض کرنا شروع کر دے. تو میری بیٹی ہے, تو نے مجھے قبول کیا. اور خدا نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے منہ سے دوسروں کے لیے برکت نکلے, کیونکہ میں نے تجھے برکت کے لیے بلایا ہے, میں نے تجھے لعنت کے لیے نہیں بلایا. تو آپ کس چیز کا چناؤ کرنا چاہتے ہیں؟ Are you chosen to be a blessing for others? کیا آپ کو بھی خدا نے برکت کے فرزند ہونے کے لیے تو نہیں چنا, لیکن جانے انجانے میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا پرسپیکٹیو بنا لیتے ہیں, اپنی سوچ سے نظریہ بنا لیتے ہیں اور اس شخص سے بول چال بند کر دیتے ہیں, دور رہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں ایتے ہے ہی انجدہ. میرے عزیزو, وہ شخص جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں آپ کا کام نہیں ایسا کہنا. خدا نے اس کو بھی اپنی شبیہ پر بنایا جیسے خداوند نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا. آج خداوند چاہتا ہے اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو آپ کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے, آپ کا مائنڈ سیٹ نیا ہونا چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے ہمیشہ اپنے لبوں سے برکت چاہیں. ہاللویا. اور کلام میں لکھا ہے جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے خداوند اسے, جس پیمانہ سے تم دوسروں کے لیے ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے تے جے دوسرے انو بددعائیں دئی جانیاں نے کرسی کی ذکر ہی جانا ہے تو وہی ساری چیزیں جو کیا ہے آپ کے لیے ریورس ہو کر آتی جائیں گی. کل رات خدا نے مجھ سے کہا کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے, I want them to have a new mindset. میں چاہتا ہوں ان کی ذہنیت نئی ہو جائے, ان کی سوچ نئی ہو جائے تاکہ وہ کنگڈم مائنڈ سیٹ کے لوگ بن جائیں. ہاللویا ہاللویا. میرے عزیزو, اگر آپ کو سمجھتا ہے لگتا ہے آپ محدود ہو گئے ہیں, اس بیماری سے نہیں نکل سکتے, تو پھر آج سے start believing bigger. بڑا سوچنا شروع کر دیجئے. expect bigger. بڑی چیزوں کی توقع کیجئے. You are not limited by your circumstances. آپ اپنے حالات کی وجہ سے محدود نہیں ہیں. اکثر اوقات بچے گھر میں بچپن میں پوچھا جائے کیا بننا چاہتے ہیں, ہر بچہ جو ہے جلدی سے کہہ دے گا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, انجینئر بننا چاہتا ہوں. اکثر اوقات ارد گرد والدین یا کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے جلدی سے بچے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ایسی سوچ, ایسے الفاظ, تو پتر تو نہیں بن سکتا, ساڑی اینی پسلی کتے, ہمارے اتنے حالات نہیں ہیں. نہیں میرے عزیزو, you are not limited by your circumstances. آج سے آپ بڑا سوچنا شروع کیجئے, بڑی چیزوں کی توقع کیجئے اور کہنا شروع کیجئے nothing is impossible. میرے خدا کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. جب آپ ایمان سے بڑی بڑی چیزوں کو مانگیں گے تو کلام میں لکھا ہے جب اس نے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہ کیا تو باقی چیزیں ہم کو کیوں کر نہ دے گا. یہ ساری بلیسنگز آپ کے لیے ہے. اپنا جو
माइंड सेट आपने बनाया हुआ है ना, असी इंज दे ही रहना है। चेंज इट टुडे। यीशु के नाम से आज इस जहन को, इस सोच को तब्दील कीजिए। आस्क बिग एंड यू विल गेट बिग। जब आप बड़ी चीजें मांगेंगे तो बड़ी चीजें आपको मिलेंगी। मेरे अजीजों, दाऊद को देखिए, क्या था? अ शेपर्ड बॉय, चरवाहा था, यानी लो इनकम फैमिली, यानी उनकी आमदन बड़ी छोटी थी, भेड़ बकरियां चराता था। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। वी ऑल आर ब्लेस्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। क्या था? दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, एक नौजवान लड़का, कोई इतनी तालीम भी नहीं थी, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन, माली हालात इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने उस छोटे चरवाहे को उठाया और इस्राएल का बादशाह बना दिया। यानी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त आप क्या हैं। मेरे अजीजों, स्टॉप थिंकिंग। बहुत से लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में ही सोचते रहते हैं, या पुरानी बातों को ही नहीं सोचते। हाय ऐसी इंज ना कर दे, इंज नहीं सी होना। आज मैं आपको कहती हूँ, अपनी सोच को तब्दील कीजिए, न्यू माइंडसेट को अपने अंदर लीजिए, और ये ना कहते रहे कि मैं अब क्या हूँ। दुआ कीजिए, खुदावंद से कहिए, खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू मुझे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। अगर तूने दाऊद को चरवाहा से बादशाह बनाया तो तू मुझसे भी उतनी ही मोहब्बत करता है। कितनों का ईमान है खुदावंद आपसे भी उतना ही प्यार करता है। आए दोनों हाथों को लहराइए और जोरदार तालियां खुदा के पाक रूह के लिए। इसी तरह मेरे अजीजों, इब्राहिम और सारा तकरीबन 100 साल के पास पहुंच गए थे। खुदावंद ने उनको औलाद की बरकत से नवाजा। यानी इंसानी मेडिकल सोच से लग रहा था कि ना मुमकिन है, लेकिन खुदावंद ने इब्राहिम और सारा के साथ जो वादा किया था उसको पूरा किया। खुदा के कलाम के अंदर जितने वादे हैं वो आपके लिए हैं। खुदा के वादों को बोलना शुरू कीजिए। जब सब सुबह उठते हैं, दुआ करते, कहा करें, खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरा कलाम कहता है मैं बरकत पाऊंगा, तेरा कलाम कहता है मैं जीता रहूंगा। जब खुदा के कलाम के वादों को बोलेंगे तो अगर खुदा इब्राहिम और सारा के लिए वादा को पूरा कर सकता है, वो आपके लिए भी करेगा। कितनों का ईमान है? हालेलुया। ते फिर जेड़ियां भैनां कहंदियां रहंदियां ने, हाय साडा ते हरे रब सुनदा ही नहीं। मसला ताडे च है। अपनी सोच को तब्दील कीजिए। ये सोच आपके होंठों पर मनफी बातों को लाती है, और वो मनफी बात मेरे सरमन से रिलेटेड तो नहीं है, और मैं इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, लेकिन साड़ियां पुरानियां बीबियां बड़ा कर दियां ने। गुजरने होना, आए हाय बिल्ली अगों नांगी, ओए होए होए, बिल्ली बेचारी नूं पता भी नहीं, एवें सारा दिन बीपी हाई कर लेना। हो बिल्ली ते हुण अगों राह कट गई है, ऐ ते बड़ा भैड़ा हुंदा है, ऐ ते इंज हुंदा है, ते उंज होता है। ये आपकी अपनी सोच है। मेरे अजीजों, चाहे आपके सामने बिल्ली आ जाए, चाहे आपके सामने रीछ आ जाए, चाहे आपके सामने शेर भी क्यों ना आ जाए, वो शेरों के भी मुंह को बंद कर देता है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है, ये जरूर है, आज आपको सारों को कह रहा है, बड़िया भैनां हस भी रही ने, अपनी सोच को भी तब्दील करे। तुसी बिल्ली वेख के डर जाते हो। खुदावंद चाहता है कि आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और इब्लीस की सारी कुव्वत और ताकत पर गालिब आए। अ न्यू माइंडसेट, एक नई ज़हनियत, एक नई सोच वो चाहता है कि आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, उसके पास आपके लिए एक ऐसा मुस्तकबिल है जिससे आप भी हैरान हो जाएं। हालेलुया। अगर इफ्सियों उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ें, अगर आपके पास भी बाइबल है, जल्दी से इस कलाम को खोलिए। इफ्सियों दूसरे बाब
की 7वीं आयत लिखा है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। पौलुस रसूल किस आने वाले जमाने की बात कर रहे हैं? इस जमाने की जिसमें हम रह रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश में अगर इस वर्ड्स को पढ़ें तो इट गिव्स अ वेरी पावरफुल मीनिंग। इंग्लिश में इस वर्ड्स में लिखा है, इन द एजेस टू कम वी वुड सी सरपासिंग ग्रेटनेस ऑफ गॉड्स फेवर। उर्दू में लिखा हुआ है जी, नहायत दौलत दिखाए, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है खुदा की तरफदारी। जब आपको खुदा की फेवर ही मिल जाएगी तो फिर क्या है उसका फजल। फजल क्या होता है? जिस चीज के हम लायक भी नहीं हो वो हमें मिल जाए। दाइम भाई का बड़ा खूबसूरत गीत अभी हमने गाया, क्या था वो गीत? कि आज जोमिया में यीशु दा कमाल है। फजल, ग्रेस इज दिस, ऐसी चीज जिसको आप डिजर्व भी नहीं करते वो आपको मिल जाए। तो खुदा का फजल आप पर है। आप भूल जाते हैं, आप बिल्लियों को देख के, छोटी छोटी बीमारियों को देख के परेशान हो जाते हैं। कई लोग खबरें ही लगा लेना, हो सुबह से शाम तक खबरें देख के ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं। मेरा अजीजो, अगर आपको मुसीबतें नजर आए, आफात नजर आए, वी हैव सॉल्यूशन, हमारे पास हल है। और वो हल क्या है? हल है मुश्किलात, और उसका नाम क्या है? आजकल बिल भी बड़ा ज्यादा आ रहा है, कई बिल देख के भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद क्या करता है? उसको भी हल करता है। अभी यहाँ पर क्या लिखा? इस जमाना के अंदर हमें उसके फजल के वसीला से नहायत दौलत दिखाए, यानी हमारी फ्यूचर ब्लेसिंग, कसरत की बरकत, आमदनी जितनी भी है खुदावंद उसी में बरकत को उंडेलेगा। ना कुपियों में से तेल खत्म होगा, ना मटकों में से आटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, क्या आज आप भी ऐसी मश्क तो नहीं बने हुए जो पुरानी मश्क है, जो नई मैं को उंडेले जाने से रोक रही है? अगर आप पुरानी मश्क की तरह हैं, यानी आपके अंदर ओल्ड माइंडसेट है, किंगडम माइंडसेट अभी नहीं आया, तो आज आपको जरूरत है कि आप अपनी पुरानी मश्कों को नई मश्कों से तब्दील करें, ताकि खुदावंद नई में यानी उन नई बरकत को आपकी जिंदगी के अंदर उंडेले। हालेलुया। मेरा अजीजों, ये जो पुरानी मश्कें हैं ना, वो खुदा को रोक देती हैं कि वो आपके अंदर बरकत को उंडेले। लेकिन न्यू माइंडसेट, मेरे अजीजों, न्यू माइंडसेट क्या है? आगे आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, आप क्या कहें? आई डोंट सी अ वे। खुदावंद मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूँ, जानती हूँ, तेरे कलाम में लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, तू ही रास्ता है। मेरा ईमान है कि तू मेरे लिए रास्ता बनाएगा, तू मेरे लिए बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान कर देगा। नए न्यू माइंडसेट क्या है? कि पहाड़ों को देखकर परेशान ना हो जाइए, मुश्किलों को देखकर मत घबराइए, बल्कि इन मुश्किलों को बताइए कि आपका खुदा बड़ा है। कितनों का खुदा बड़ा है, और वो पहाड़ों को, मुश्किलों को मैदान करने की जरूरत रखता है। तो आइए फिर बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। न्यू माइंडसेट ये है कि चाहे रिपोर्ट में कैंसर भी क्यों ना आ जाए, आप कहिए खुदावंद मैं जानता हूँ कि तू मेरा शाफी है। आप में से बहुत से लोग खुदा के खादम पास्टर ब्राड को जानते हैं। पिछली ही दफा, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले, जब वो पाकिस्तान आए, आखिरी दिन था उनका, सिटिंग रूम में वो बैठे हुए, उनको उनकी वाइफ का मैसेज आया, और इस मैसेज में लिखा कि आज मेरी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में आया है कि मुझे कैंसर है। खुदा के खादम परेशान नहीं हुए, आम माइंडसेट नहीं, उन्होंने आगे 2 और मुल्कों में जाना सी।
हुण ते बीवी बीमार हो गई है, 2 मुल्कां च नहीं जाना, ओदे कोल ही जाना, नहीं। उन्होंने कहा खुदा का कलाम नहीं रुकेगा। खुदा के खादम पास्टर इमरान के साथ मिलकर सिटिंग रूम में मुत्तफिक होकर हमने दुआ की और कहा खुदावंद हम कैंसर को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हम जानते हैं कि कैंसर क्या, तू तो मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। दुआ की, दुआ के बाद खुदा के खादम को एयरपोर्ट छोड़ कर आए और वह दूसरे 2 मुमालिक में गए, वहां पर जाकर कलाम की मनादी की और 2 हफ्ते बाद ही जो स्केड्यूल था उसके मुताबिक ही अपने घर गए। सोच नहीं तब्दील कर ली थी, नहीं नहीं नहीं, हुनते कुछ भी नहीं करना, हाय कैंसर हो गया पता नहीं क्या होगा, नहीं, फौरन कहा न्यू माइंडसेट, खुदावन तू कैंसर को भी इसी घड़ी खत्म कर। 2 हफ्ते के बाद वो अमेरिका पहुंचे और तीसरे हफ्ते हमें उनकी कॉल आई और कहने लगे मेरी बीवी दोबारा डॉक्टर्स के पास गई और हमारे पास रिपोर्ट्स हैं अब जिसमें लिखा है कि ये कैंसर से शिफा पा गई है। हालेलुया। नहीं, मैं जब नई मशकों में पड़ती है तो तभी परफेक्ट होती है। अगर आज पुलिस ने आपको ऐसा ड्रम बना दिया है, यानी मशक इट्स लाइक अ बॉटल, इट्स लाइक अ ड्रम, ऐसा ड्रम बन गया है जिसके अंदर नेगेटिविटी, मनफी बातें पुलिस ने भर दी हैं, तो आज वो क्या नहीं तब्दील कर दीजिए। आज खुदावन से कहिए खुदावन तू मुझे तब्दील कर और नया माइंडसेट दे। जब नई सोच होगी तो खुदावन नई बरकतों को उंडेलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से जल्दी से अमाल उसका पहला बाब और 1 से 10 आयत, यहां पर भी हमें कहानी मिलती है। आप घर जाकर इस हवाले को पढ़ लीजिएगा। वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए जल्दी से मैं इस कहानी को नरेट करूंगी आपके साथ मिलकर। अमाल 3 बाब उसकी पहली 10 आयत, यहां पर हमें एक मफलूज की, जन्म के लंगड़े की कहानी मिलती है जिसको हर रोज दरवाजा पर बैठा देते थे। दरवाजे का नाम क्या है? खूबसूरत। वो दरवाजा क्या कहलाता है? लेकिन उस शख्स की सिचुएशन क्या है? टेरेबल, खौफनाक। हर रोज उसको लाते थे, वहां पर बिठा देते थे। मशकों की कैन की डब्बे की बात कर रही थी और ये शख्स क्या है? इसके हाथ में भी एक डब्बा है, एक कप है, एक प्याला है जो हर रोज वहां पर वो लेकर बैठ जाता है। सालों से वहां पर बैठा हुआ है और उसकी तवक्को क्या है? इस शख्स का माइंड सेट बेगर माइंड सेट है। ये शख्स इस कहानी में हमें भीख मांगने वाला शख्स मिलता है। ना सिर्फ भीख मांगने वाला बल्कि माइंड सेट, सोची इन्हें मिल जाएंगे, ठीक है आज का दिन चल जाएगा। इसका माइंड सेट ही ऐसा बन गया था। और मेरे अजीजों क्या हुआ? हैकल में बड़ा रश, उसके लिए तो बड़ी परफेक्ट प्लेस थी। इथे तो बड़ा रश रहता है, आंदे जांदे लोग, कोई ज्यादा पैसे दे देता है, कोई कम दे देता है और उसका घर चलता है, जिंदगी चलती है। लेकिन एक दिन क्या होता है? पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे होते हैं। हैकल खुदा का घर, फुल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जहां पर लोग दुआ के लिए आते, जहां पर खुदा के कलाम की मनादी होती। बहुत से लोगों की हालत ऐसी ही है, वो चर्च में तो आते हैं, वो खुदा के खादमीन की रफाकत में तो रहते हैं, लेकिन उनकी हालत अफसोस के साथ ऐसी ही है। हैकल के दरवाजों पर ये बैठा रहता है, कई सालों से यहाँ पर है, लेकिन कभी भी इसके अंदर ईमान नहीं जागा, कभी भी इसकी सोच नहीं हुई कि मैं क्या भीख मांग रहा हूं। क्यों ना मैं मसीहा को पुकारूं, क्यों ना मैं यीशु को पुकारूं और उससे कहूं कि मुझे शिफा दे दे। मेरे अजीजों, जब ये पतरस और यूहन्ना को भी देखता है बड़ा खुश होता है। कहता है एनांगरे ने एक्सपेक्टेशन, माइंडसेट
बेगर माइंडसेट, भीख मांगने वाला जहन यहां पर भी है। क्या है? उसके जहन में आया ये गुजर रहे हैं, शायद मुझे और मिलेगा। जैसे ही पतरस और यूहन्ना को देखता है, वही कप दोबारा से ऊपर करता है, खुश होता है कि मुझे इसमें कुछ रुपए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे अजीजों क्या होता है? पतरस और यूहन्ना उसको क्या कहते हैं? वो उसकी तरफ देखते हैं, वो बेगर, वो फकीर, वो शख्स जो मफलूज है, जिसकी रोज की जिंदगी ही ऐसी है, जिसका ज़हन ही इब्लीस ने पक्का कर दिया है कि ऐसे ही जिंदगी बसर करनी है। जल्दी से पतरस और यूहन्ना की तरफ मतवज्जो होता है। इसलिए नहीं मतवज्जो होता कि शायद वो दुआ करेंगे, इसीलिए मतवज्जो होता है कि मेरी मदद होगी। बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं जो लाइव देख रहे हैं। शायद इब्लीस ने आपकी हालत भी ऐसी ही कर दी है, आपका जहन भी। शायद बदनी तौर पे तो आप ठीक हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर आपका माइंडसेट इस मफलूज की तरह है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। और उसने उसकी बाजू उठाई और वो यीशु के नाम से चलने लगा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। अब मेरे अजीजों, जैसे ही उन्होंने क्या उसको दिया, खुदा का कलाम। अभी हम बड़ा खूबसूरत गीत गा रहे थे, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती क्या है? खुदा का कलाम। मेरे अजीजों, वो शख्स हैकल के तो पास था, उस खूबसूरत दरवाजा पे तो हर रोज बैठता था, लेकिन उसका जहन पुराना था, सोच पुरानी थी, उसका बेगर माइंडसेट था, भीख मांगने वाला जहन था। लेकिन मेरे अजीजों, कभी उसने कोशिश नहीं की कि हैकल के अंदर जाए, कलाम की हो सकता है बाहर आवाज आती हो, लेकिन वो इतना मगन सी, उसने कहा ही नहीं कि मैं ठीक हूं। वो कहता, मेरे पास तो जिंदगी गुजारने का अच्छा तरीका है, ऐथे ही बह जाना, वहां शाम तक मिल जाता है, कार चला जाता हूं। यही हालत आज भी बहुत से लोगों की है। यू हैव बिकम बैगर मेंटालिटी। आपका जहन ऐसा बन गया है, आपकी सोच ऐसी बन गई है, इब्लीस ने आपके जहन को जकड़ा हुआ है। लेकिन आज मैं, जिस तरह पतरस ने उससे कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं, जो कुछ मेरे पास है यीशु के नाम से देता हूं। आज यीशु के नाम से मैं आपको खुदा के कलाम से न्यू माइंडसेट को देती हूं, नई सोच को देती हूं, ताकि मेरे अजीजों, आप वहां पर अपनी बीमारी को लेकर, मुश्किल को लेकर बैठे ना रहे, बल्कि आप उसके परमानेंट सॉल्यूशन का हल निकाले। वो हैकल के तो पास था, लेकिन कलाम से दूर था। लेकिन जैसे ही खुदा के खादमों ने उससे खुदा का कलाम दिया, वो उठकर चलने लगा, टखने मजबूत हो गए, उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं जानती कि आज इब्लीस ने आपकी जिंदगी के किस हिस्सा में, कहां पर आपको मफलूज किया है, बट इफ यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आज आप खुदा के कलाम खोलेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। How many of us are like this? हम में से कितने इस तरह हैं? Maybe we are not crippled, हम मफलूज तो नहीं है, भीख मांगने वाले तो नहीं है, लेकिन सुनिए जरा गौर से, हमारी नेगेटिव रूटीन, हमारी मनफी तौर तरीके जिंदगी को बसर करने के, उन्हें हमें तब्दील करने की जरूरत है। जो बरकत, आखिर में एक बात आपको कहना चाहूंगी, उस भीख मांगने मफलूज ने तो जल्दी से पतरस और यूहन्ना की तरफ अपना वो कप किया, प्याला किया कि उसके अंदर वो कुछ ना कुछ डालेगा।
लेकिन जो बरकत पतरस और यूहन्ना ने उसे दी वो उस प्याले में आ नहीं सकती थी। इसी तरह जो बरकत खुदावंद आपको देना चाहता है वो कप जो आपके पास है इसमें पूरी नहीं आएगी। इसको हासिल करने के लिए आपको अपने आप को नया करना पड़ेगा। आप अक्सर कहते हैं ओहो डॉक्टर ने हुन मैंने शुगर दस दिता है, जी रहे आए दे नाल ही इंज कर लेने उंज कर लेने। नहीं मेरे अजीज, आपने बीमारी के साथ नहीं जीना। यू हैव टू से टू दिस सिकनेस, आपको बीमारी को कहना है मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं मेरे बदन से निकल जा। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, as long as you have a cup mentality you will be sitting at the gate। जितनी देर तक सोच बस कप वाली होएगी ना कि बस इतना कोई मिल जाए तो फिर आप भी दरवाजे पर ही बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि जब उसके टखने मजबूत हुए वो चलने लगा, चलने के बाद दौड़ने लगा, दौड़ने के बाद he was jumping और भागता हुआ क्या हुआ इतनी दूर चला गया कि फिर मुड़ के चर्च ही नहीं आया। नहीं मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है वो दौड़ता भागता हुआ हैकल के अंदर आया। आप भी जरा कान खोल के सुन लो। अब आप हंसेंगे भी, मैं पंजाबी की सिंपल बातें इसलिए करती हूँ जरा समझ जल्दी आती है। आप भी 3 इतवार चर्च आ गए, ओहो हो काम हो गया, उस तो बाद 3 इतवार नजर ही नहीं आना। ओह सिस्टर जी वो फलां इंज हो गया सी। बहुत से लोग आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, सिस्टर जी दुआ करो कारोबार बंद होया पिया जे, मैं इंज करांगा उंज करांगा। जैसे ही कारोबार खुलता है इतवार को भी आना छोड़ देते हैं। फिर पूछते हैं ओ सिस्टर जी काम ही मिल गया सी इतवार दी सुबह, मैं अगले इतवार आवांगा। फिर क्या होता है मेरे अजीजों, तब भी वापस आते हैं जब कोई ना कोई बीमारी या मसला हो जाता है। फिर मतलब है कि इब्लीस ही चर्च का रास्ता भी तानू विखांदा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इब्लीस आपसे दूर रहे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा बाबरकत रहे। मैं चाहती हूँ कि आप ईमान से भरे रहे और आप खुद ऐसे शख्स बन जाएं जो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। हालेलुया हालेलुया। एक आखिरी बात, वो शख्स क्या था जो वहां पर बैठा था? उसने उन लोगों को अपना सोर्स बना लिया था। जो अंदर आते थे हैकल के, बाहर जाते थे, मतलब सोर्स के उन्हीं से उनका घर चल रहा था। आज मैं ये बात खुदा के खौफ में आपको कहना चाहती हूँ, हमारा सोर्स, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा तवक्कल किस पर होना चाहिए? जिंदा खुदा पर। जब तक आपकी आंखें जिंदा खुदा पर लगी रहेंगी ना तब तक आप बरकतों से माला माल रहेंगे। तो आज के बाद स्टे फोकस ऑन गॉड। खुदावंद आपका सोर्स है। स्टार्ट लुकिंग एट गॉड। लोग महदूद हैं, हो सकता है आप किसी के पास जाएं कोई आपकी इतनी मदद कर सके, इतने काम आ सके, लेकिन हमारा खुदा क्या है? ला महदूद खुदा। वो कहता है शिफा भी दूंगा, रिहाई भी दूंगा, बरकत भी दूंगा, कसरत की जिंदगी भी दूंगा। मेरे अजीजों, पीपल कैन गिव यू अ शॉर्ट टर्म फिक्स। हो सकता है कोई शख्स आपके काम आए लेकिन थोड़े अरसा के लिए उससे जिंदगी चल सके, लेकिन खुदा क्या करेगा? जिस तरह उसने उस मफलूज को चलाया वो आपकी जिंदगी से भी बीमारी को खत्म करेगा। वो आपको लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहें, वो चाहता है कि आप तंदुरुस्ती में रहें। वो ये नहीं चाहता कि कमियां घाटियां च रहें, वो चाहता है कि आप कसरत की जिंदगी पाए। लेकिन मेरे अजीजों, प्याला जड़ा फड़िया है ना छड़ दो। कई लोग ठीक भी हो जाते हैं फिर भी वो खिंची ले आने ने प्याला ना ली। खुदावन चाहता है कि नई मशकों में भरी जाए। अगर इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे काम किए हैं, नेगेटिव थिंकिंग को लाया है, तो आइए आज कहिए खुदावन सोचें हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी, ताकि आज के बाद आप किसी भी चीज को देख कर डरे नहीं बल्कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलें और इब्लीस की सारी कुव्वत ताकत पर गालिब आए। हालेलुया। आए सब अपने कदमों पर खड़े हों।
Hallelujah. आइए, I want to declare a new mindset upon you. हम कोर्स की एक वर्स गाएंगे. Praise Jesus. खुदा हम का शुक्र अदा करते हैं कि आपने यीशु को अपना दिल दिया है. आप उसके बेटे और बेटियां हैं. कुछ लोगों को भी इब्लीस ने क्या काबू फाड़ के रखो, खड़े भी नहीं होना. मेरे अजीजों, आइए ईमान से खड़े हों. जब आप खड़े होंगे वो आपके टखनों को मजबूत करेगा. आप चलने लगेंगे, चलने के बाद दौड़ने लगेंगे. आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए. उससे कहिए मैंने तेरी आवाज को सुना है. खुदावंद मैं नई मशक को चाहता हूँ, मुझे नया कर दे. मेरी सोच को नया कर, मेरे चाल चलन को नया कर. मेरा उठना बैठना तब्दील हो जाए. आइए आप अपने लबों को खोलिए, हाथों को फुली तौर पर बुलंद कीजिए. आज वो बैगर मेंटालिटी को किंगडम मेंटालिटी में तब्दील कर रहा है. आइए उससे कहिए और रबा बाबा बाबा शांति में Praise, yes Lord. आइए उसे कहिए मुझे छू. आइए उसे कहिए मेरी सोच को तब्दील कर. Praise Jesus. Yes Lord. आइए खुदावंद की हज़ूरी में पुकारिए उसे. उसे कहिए खुदावंद तू अपने मस्सा खोल ले. खुदावंद तू मुझे छू, मेरे घराने को छू ले अपा खुदा. खुदावंद इस कलीसिया को छू अपा खुदा. आइए गैर जुबानों में जैसे भी खुदा का माकलू आपको गाइड करता है, एक लम्हा के लिए अपने होठों को खोलिए, खुदावंद को पुकारिए. वो आपको छू रहा है, वो आपकी सोचों को नया कर रहा है, वो आपके बदन से बीमारी को निकाल रहा है, वो आपके टखनों को मजबूत कर रहा है. आइए पुकारिए उसे. और बाबा 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 शांति दे बेबे. आइए उसे कहिए आइए उसे कहिए मेरे ख्यालों को छू. उसे कहिए कि आज मैं तेरे दर पे आया, मेरी सोच को नया कर दे. तू मेरा खुदा है, तू मेरे लिए सब कुछ करता है. और रबशा तेरे खुदावंद मैं तेरी डिवाइन फेवर को इन प्यारों के लिए डिक्लेयर करती. और शांता करा शांति आइए अपने दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए. अपने चेहरों को भी आसमान की तरफ कर लीजिए. उसे कहिए खुदावंद तू मुझे ले. खुदावंद आज मैं तेरी सुपरनैचुरल फेवर को एक एक के लिए मांगती. खुदावंद आज के बाद हमारी सोचें तेरी सोचें हों, हमारे ख्याल तेरे ख्याल बन जाए. खुदावंद बीमारियां जाती रहे, नजासतें जाती रहे. और मैं जानती हूँ कि तू नए दरवाजों को खोल रहा है और तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता. खुदावंद आपके लिए नए दरवाजों को खोल रहा है. वो आपके दुश्मनों को आपके दोस्त बना रहा है.
اس کا شکر ادا کیجیے. وہ کثرت کی برکت کو آپ پر اڈیل رہا ہے. آئیے اس کے مسا کو لے لیجیے. آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے رہیے اور کہیے I receive in Jesus name. کہیے میں تیرے مسا کو لیتا ہوں, میں نئی سوچ کو لیتا ہوں. میری سوچ کنڈم سوچ بن جائے, میں دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں مسیح کے نام سے. آمین. آئے بلند آواز سے کہیے آمین.